In right angle triangle, right angled at B, AB is 24 centimeter, BC is 7 centimeter. Determine sin A, cos A, sin C, cos C. First, this is a right angle triangle. So let me apply Pythagoras theorem and find AC first. So if I apply Pythagoras theorem, then what I will get is AC square is equal to AB square plus BC square. So if I want AC square, then I need to find out AB square plus this 7 square. So this will be equal to 576 plus 49, and that is equal to 625. So AC will be equal to 25 centimeters. So what I got, children, here is I got the length of this as 25 centimeter. Now what I need to find out is cos C and sin C, as well as sin A and cos A. See, try to understand the meaning of sin A. Sin A means what? You are standing here. You are at the top of the triangle. And when you are at the top of the triangle, I have told you already, this side opposite to right angle is hypotenuse. Side opposite to the angle is opposite side. And the side along with the angle is base or adjacent side. Base or adjacent side. This is opposite or perpendicular side. So children, now you want sin A. So if you want sin A, then what I remember is, remember that so ka to a, that formula you remember, so ka to a. So ka to a. You want sin theta, and sin theta means what? You want opposite by hypotenuse. आपको क्या चाहिए? अपोजिट बाय हाइपोटेनस. और आप अगर यहाँ पर खड़े हो तो ये आपका अपोजिट साइड ये है, हाइपोटेनस ये है, यानी आपको क्या चाहिए यहाँ पर? BC अपॉन, आपको चाहिए, you want BC अपॉन AC, that means what? 7/25. ये होगा sin A की वैल्यू. नेक्स्ट, अगर आपको cos चाहिए, cos A, cos का मतलब होता है का. अगर आपको cos A चाहिए तो का, और का मतलब होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस. का मतलब होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस. आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर खड़े हो तो ये अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है, ये हाइपोटेनस है. तो ये एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, यानी क्या होगा बच्चों? AB अपॉन AC, और AB कितना है आपका? 24/25. तो ये रेशियो हो जाएगा. नेक्स्ट, अगर आपको साइन C चाहिए, मैंने दो अलग अलग फिगर बनाए हैं. एक्चुअली एक ही फिगर में सब कुछ करना है आपको, मगर सिंस इट्स अ फर्स्ट प्रॉब्लम, टू मेक द थिंग्स मच ईजियर फॉर यू, आई एम ड्राइंग दिस two figures. In the exam, you are supposed to draw only one figure. See, this is 24, this is 7, so this has to be 25. Now sin C. Sin C means, remember, you are observing from this point. This point means this is opposite side, this is hypotenuse, this is adjacent side. So this side is opposite side, this side is opposite side. Side opposite to right angle is always hypotenuse, you know it. Side opposite to theta is opposite side, and this is base or adjacent side. Now you want, what do you want? You want sin C. आपको किसकी जरूरत है? sin C की जरूरत है, यानी अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस. सो अपोजिट बाय हाइपोटेनस यानी क्या? AB अपॉन अपोजिट साइन थीटा है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस. शुरू में टिल यू गेट प्रैक्टिस, यू कीप ऑन राइटिंग दिस फॉर्मूला. AB अपॉन AC. So what is it? AB upon AC. So AB is how much? 24/25. Now what you want? Cos C you want. Cos C, ka means what? Adjacent by hypotenuse. This is adjacent side, this is hypotenuse. That means what? Adjacent side by hypotenuse. And adjacent side by hypotenuse means what? BC upon AC. And what is BC is equal to 7/25. So this is the answer. So depending upon your position, opposite side and base is decided. Now here you want tan P minus cot R. See here, tan P. Now I am not going to draw two different figures. I am going to draw the same figure. So in the figure you see tan P
tan P means you are standing at the top. See, this is right angle. स्टैंडिंग एट द राइट एंगल, आप नीचे देख रहे हो, अगर आप नीचे देख रहे हो तो ये आपका अपोजिट साइड हो जाएगा, और राइट एंगल के सामने वाला साइड हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस, और ये हो जाता है आपका बेस। ये एडजेसेंट साइड, जो भी आपको कहना हो ये फ्री है आप कहने के लिए, या इसको भी आप क्या कह सकते हो, परपेंडिकुलर साइड। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, tan P अगर आपको ढूंढना है, tan का मतलब होता है टोया, टोया का मतलब होता है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो ये है आपका अपोजिट साइड और ये है आपका एडजेसेंट साइड, यानी क्या होगा, tan P का मतलब होता है, tan P अगर आपको चाहिए तो tan P होगा अपोजिट साइड यानी ये वाला, और ये है एडजेसेंट साइड यानी QR अपॉन PQ, QR अपॉन PQ। नेक्स्ट है cot R, cot R, cot मतलब tan का उल्टा, टोया यानी अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो tan का उल्टा है cot यानी एडजेसेंट बाय अपोजिट। और आप कहाँ पर खड़े हो, आप खड़े हो यहाँ पर, R यानी आप खड़े हो यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो आपका अपोजिट साइड ये होगा, आपका हाइपोटेनस यही रहेगा मगर एडजेसेंट साइड ये होगा, यानी ये होगा एडजेसेंट साइड और ये होगा अपोजिट साइड। तो टो आ उल्टा एडजेसेंट बाय अपोजिट माइनस एडजेसेंट बाय अपोजिट, tan का मतलब होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो यहाँ एडजेसेंट बाय अपोजिट में क्या होगा, QR अपॉन PQ होगा, QR अपॉन PQ। तो QR अपॉन PQ, QR अपॉन PQ, QR अपॉन PQ। और QR अगर आप ढूंढोगे बच्चों तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, दिस इज 169, तो इसको आप करोगे तो क्या होगा, ये PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PR स्क्वायर है 13 का स्क्वायर, PQ स्क्वायर 12 का स्क्वायर, QR का स्क्वायर आपको ढूंढना है। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। सो QR इज इक्वल टू QR स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सो QR इज इक्वल टू 5, QR इज इक्वल टू 5। तो एक्चुअली यहीं पर कैंसिल हो जाता है, मगर आप लिख के कैंसिल करेंगे तो बढ़िया रहेगा। दिस इज 5/13, दिस इज अगेन माइनस 5/13, दोनों कैंसिल हो गया, तो आंसर इज हाउ मच, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, अगर साइन ए की वैल्यू 3 है, 3/4 है, तो आपको बताना है कॉस ए कितना होगा, tan ए कितना होगा। देखिए साइन ए का मतलब होता है 100 का मतलब होता है अपोजिट बाय हाइपोटेनस, यानी आपको दिया है अपोजिट साइड और हाइपोटेनस का रेशियो। आपको क्या दिया है, कुछ कुछ बुक्स में इसको क्या करते हैं 3K लिखते हैं और कुछ बुक्स में इसको 4K भी लिखते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड आपको दिया क्या है। आपको ए यानी आप यहाँ पर खड़े हो, ए यानी आप यहाँ पर खड़े हो, अगर यहाँ पर आप खड़े हो तो ये राइट एंगल है, आपका ये साइड होगा हाइपोटेनस, आपका ये साइड होगा अपोजिट साइड और आपका ये साइड होगा एडजेसेंट साइड। तो यानी आपको दिया क्या है और आपको ढूंढना क्या है, कॉस ए। कॉस ए यानी क्या, एडजेसेंट साइड का, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस का रेशियो आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस का रेशियो आपको चाहिए। एडजेसेंट साइड यानी कौन सा, AB अपॉन AC का रेशियो आपको चाहिए। tan A टोआ अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट बाय टोआ अपोजिट बाय एडजेसेंट साइड का रेशियो, यानी BC अपॉन AB का रेशियो आपको चाहिए। आपको BC अपॉन AB का रेशियो आपको चाहिए। तो BC अपॉन AB यानी व्हाट इज इट, एडजेसेंट टोआ, एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड, सॉरी अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, तो अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट साइड इज BC बाय एडजेसेंट साइड इज AB। तो इसको आप एडिट इसको करोगे तो देखते हैं हमको पहले दिया क्या है। तो ये सब चीज़ें हमको चाहिए, मगर हमको दिया क्या है, अपोजिट साइड और हाइपोटेनस का रेशियो आपको दिया है। यानी क्या दिया है, अपोजिट साइड है 3K
और हाइपोटेनस है 4K। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आप देखो क्या मिलेगा आपको, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर यानी कितना होगा 16K स्क्वायर, 4K है AC की वैल्यू, AB की वैल्यू है ढूंढना है आपको, प्लस BC की वैल्यू है 3K यानी 9K स्क्वायर। 3K का कितना होता है 9K स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर है 16, 3 का स्क्वायर है 9। तो इसको सिंप्लीफाई आप करोगे तो 16 का K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर आप कीजिए, ये आपको मिलेगा 7K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, यानी AB इज इक्वल टू 7K। AB इज इक्वल टू हाउ मच, रूट 7K। AB इज इक्वल टू रूट 7K। AB इज इक्वल टू रूट 7K। तो अपोजिट बाय हाइपोटेनस आपको दे रखा है और आपको बाकी ढूंढना है। अब आप देखो AB बाय AC यानी व्हाट, रूट 7K बाय 4K, रूट 7 4K बाय 4K इज रूट 7 बाय 4। tan A अगर आपको ढूंढना है, tan A यानी क्या है, अपोजिट बाय एडजेसेंट, यानी क्या 3K बाय रूट 7K, और ये K कैंसिल हो जाएगा, 3 बाय रूट 7। यानी साइन थीटा अगर आपको दिया है और आपको अगर कॉस थीटा चाहिए तो कॉस थीटा होगा 16 माइनस 9 कितना होता है 7, 7 का स्क्वायर रूट होता है रूट 7K होगा। तो नेक्स्ट होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। फिर नेक्स्ट आता है tan थीटा। tan थीटा के लिए आप क्या करते हो, अपोजिट बाय एडजेसेंट यानी 3 बाय रूट 7K। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, गिवन दैट सेक थीटा इज 13 बाय 12, फाइंड अदर रेशियोज। सेक थीटा की वैल्यू आपको दी है। देखिए सेक थीटा की वैल्यू आपको दी है। एक बात याद रखना, मैंने एक ट्रायंगल बना लिया और इसको हम कहेंगे 13K, इसको हम कहेंगे 12K। तो एक बात याद रखना कि राइट एंगल के सामने वाला साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनस, थीटा वाले सामने वाले साइड को हम कहते हैं अपोजिट, इसको हम कहते हैं बेस। ये तो फिक्स है। अब आप देखिए कि अगर आपको सेक थीटा दिया है तो आपको कॉस थीटा मिल गया। सर कैसे मिला सर कॉस थीटा? सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस। डू यू एग्री विथ मी? आप इससे सहमत है बच्चों? मैंने आपको बताया था कि कॉस का उल्टा जो होता है वो सेक होता है, तो सेक का उल्टा क्या हो गया, कॉस दिया है, यानी इसका रेसिप्रोकल मैंने ले लिया। तो ये हो गया एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, यानी एडजेसेंट साइड यानी क्या हो गया, ये 12K हो गया और ये हो गया 13K। क्या हो गया बच्चों, ये 13K हो गया और ये 12 को एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस आपको दिया है। और अपोजिट साइड बच्चों आप ये जानते हो पाइथागोरस थ्योरम, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो ये कितना होगा 5K होगा। आप ये जानते हैं सारी बातें। अगर आप चाहो तो मैं इसको सॉल्व करके दे दूंगा आपको। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 5K स्क्वायर, यानी व्हाट इज इट, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कितना होगा 13 स्क्वायर प्लस 5K स्क्वायर, और ये होगा 169K स्क्वायर, और 169K स्क्वायर होता है 13K। तो आपको साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा चाहिए यानी क्या होगा, अपोजिट, सो का टोआ, साइन थीटा चाहिए यानी आपको क्या चाहिए, आपको अपोजिट बाय हाइपोटेनस का रेशियो चाहिए। आपको साइन थीटा चाहिए मीन्स व्हाट, सो अपोजिट बाय हाइपोटेनस का रेशियो चाहिए। तो ये अपोजिट है, ये हाइपोटेनस है, इसका रेशियो आपको चाहिए, इसका रेशियो चाहिए यानी आपको क्या चाहिए, AB बाय AC आपको चाहिए, और AB है 5K और AC है 13K। तो K कैंसिल हो गया बच्चों, ये साइन की वैल्यू होगी 5/13। साइन K मिल गया तो कोसेक मिल गया, क्यों, उसका रेसिप्रोकल 13/5। ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसका रेसिप्रोकल। टैन यानी टोआ, टोआ यानी व्हाट, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड है यहाँ पर AB और एडजेसेंट साइड है BC।
तो अपोजिट साइड कितना है यहाँ पर 5k, अपोजिट साइड है यहाँ पर 5k और यहाँ पर ये है 12k, यानी 5/12। और कॉट थीटा यानी क्या होगा, इसका उल्टा 12/5। सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आप जानते हो तो बाकी के सारे 5 आप निकाल सकते हो। इफ़ यू नो वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यू कैन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज योरसेल्फ। तो कितना सिंपल है ट्रिग्नोमेट्रिक, बस 100 का टोआ याद रखो, 100 का टोआ याद रखोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व।